Before starting this course on career counseling, it is extremely important to understand why you should take your career choice seriously. In this video, we will help you understand the importance of making the right career choice for yourself. So, why is your career choice so important? It is important because it determines a lot of things in your life, including number 1, quality of life. Your career choice plays a huge role in deciding where you live, how flexible your life is, and the kinds of things you are able to do in your free time. Number 2, identity. Ask any elder person about their career and they will tell you about it as a part of their identity. They'll say something like, I am a journalist, instead of, I report news. Notice how everybody asks you, what do you want to be when you grow up? And not, what do you want to do when you grow up? This shows that your career choice shapes your identity. Number 3, impact. Every human life touches thousands of other lives in so many different ways. If you select any 60-year-old person who is about to retire, take a time machine, find him as an infant, throw that infant into trash, and then come back to the present day, you'll find that a countless number of things around you have changed. So whatever career you choose, the world will be affected by it. Anything that determines your quality of life, your identity, and the impact that you make should be taken very seriously. And that includes your career choice also. So we hope that this short video could help you understand the importance of making the right career choice. Having done that, we will now move forward to start our career counseling course. We are pretty excited and we hope you are too. So, let's begin. See you. Yeah, we're live. Good evening, everyone. सबको स्वागत है. Welcome to day 83 of Probano's live podcast. Firstly, all the audience members, welcome. Thank you for coming. And of course, Aditya and Mr. Sen, welcome. और आज के हमारे very special guest, I would say, संजीव शर्मा जी आप हमारे साथ हैं. And he's a man who holds history. He holds history. So I think we are honored to have him with us today. So firstly, Sanjeev ji, thank you so much for coming to our podcast. Welcome and thank you for taking the time. मैं संजीव जी को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. Hailing from Uttarakhand, Sanjeev Sharma is the Deputy General Manager at Cisnet Global, which he calls a high-pressure, consumer-centric job, as he speaks about the importance of making time for family, friends, and hobbies. While discovering and experimenting with new sports and exercises to lose weight, which I think I need to do, owing to a back injury, Sanjeev discovered cycling in October 2017. And the rest is history. Sanjeev hasn't looked back since. Now, Sanjeev has completed the coveted Paris-Brest-Paris PBP, a 1200-kilometer route in 81 hours, 22 minutes and 20 seconds. Sanjeev aims to get a much better time at the 2023 PBP with learnings from his 2019 journey. Now, the PBP tour that happens once every 4 years. So you can figure out how prestigious that is. And Sanjeev is the only Indian who has completed the PBP in the 84-hour category. So as I said, guys, we have a man who holds history. He is the only Indian who has completed the PBP in the 84-hour category. Sanjeev always maintains high praise for the love and support from his employers, his colleagues, and most importantly, his family, who enable him to realize his passion for cycling. So Sanjeev ji, thank you so much for coming to our podcast. Welcome.
ऑफ कोर्स Thank you अगर so आप much. अपने खुद के शब्दों में इंट्रोड्यूस कर सकते हो और अपने हमारे ऑडियंस को एड्रेस कर सकते हो, प्लीज ओवर टू यू. Thank you, everyone. My name is Sanjeev Sharma, and I just completed 43 years. So I grew up and brought up in Modinagar only. That's a part in Uttar Pradesh. So, and then currently I am staying in Ghaziabad only. So after doing this schooling and this college, I started doing certain gym and other sports activity. But in the year of 97, 98, I just faced this sleep disc issue. Okay, that happened due to this weightlifting and other part. So उसके बाद से मेरे को थोड़ा स्पोर्ट्स का जो था एक्टिविटी वगैरह सारा बिल्कुल स्टॉप करना पड़ता है एज पर द दिस डॉक्टर्स एडवाइस. So then from 1999 I engaged in this my job that I started my career in the IT field only. So I started as an engineer only, IT engineer. So from 1999 I was doing this activity, and then in the year of 2006 I moved to Delhi only. So from 1999 to 2006 I was there in Gillette as a IT engineer, okay, in the manufacturing plant that is in Bhiwadi, Alwar. So वहाँ से career चलता रहा, and then in the year of 2003 I got married. In 2006 we got a baby boy, okay, and currently even he is also 13-year-old. And from 2006 I moved to Delhi and joined Sysnet Global Technologies IT organization, that's a IT services company, okay, and there I started my career as a project manager. Then I moved to different role, different project, different assignments there, and currently I'm there as a deputy general manager, okay, and heading all the projects which are running in the India, okay. अच्छा, अब ये जो समद भाई जैसे आपने बोला कि एक ठीक है, एक साइकिलिंग का एक कहाँ से एक पैशन स्टार्ट हुआ, एक थिंग्स स्टार्ट हुई. जब ये स्लिप डिस्क का एक इश्यू था, ये तो ऑलरेडी मेरे साथ था लाइफ के साथ में. एंड एक प्रॉब्लम ये होता है बड़ा कि हम जब धीरे धीरे एक प्रोफेशनल लाइफ में एसोसिएटेड हो जाते हैं एंड फैमिली लाइफ भी होती है. सो डेफिनेटली एक कॉमन इश्यू सबके साथ आता है कि अपने लिए टाइम निकालना एक बड़ा इश्यू हो जाता है, ओके. एंड कहीं ना कहीं क्योंकि अब क्या होता है कि हम जिस सोसाइटी से, जिस ग्रुप से हम धीरे धीरे ग्रो होते हैं, सब धीरे धीरे फ्रेंड्स वगैरह हट जाते हैं. देन आपका एक कहीं ना कहीं एक वो लिंक टूटता है जिसमें कि आप कहीं ना कहीं एक किसी भी एक्टिविटी, चाहे वो जिम के लिए किसी के लिए भी एक एक्टिविटी रहते थे, आप कहीं ना कहीं एक इनकरेज मिलता था कि फ्रेंड्स जा रहे हैं, चलो ठीक है आप भी कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कोई रनिंग करते हैं, कोई भी जो है आप किसी ना किसी इवेंट में एक्टिव रहते हैं, सो दैट कि आप फिट रहें, आप एक्टिव रहें. बट वो सारा धीरे धीरे क्या होता है कि कहीं ना कहीं इस पूरी लाइफ की भाग दौड़ में जीरो होता जाता है. सो अराउंड 2016 और 15 के रेंज में एक इवन इतना पैनिक हो गया था, पेन एक सडनली एक जर्क लगा, एंड देन आई वाज नॉट इवन एबल टू मूव, वॉक. सो देन आई गो फॉर दिस MRI एंड अदर थिंग्स, एंड देन दे फाउंड कि आपका जो L5 और S1 के बीच में जो डिस्क है वो इतना डैमेज हो चुका है कि वो बिल्कुल आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको टच कर रहा है. सो दैट इज़ द ओनली थिंग जो आपका वर्स्ट पेन क्रिएट कर रहा है. अब डॉक्टर्स हमेशा आपको एडवाइस करेंगे, ओके दिस इज द पेन किलर सर्टेन थिंग. जो पेन किलर क्या होता है कि नथिंग लाइक कि आपका जो है ब्रेन को कहीं ना कहीं बिल्कुल एक नमनेस कर देता है, एक सुन कर देता है, सो दैट कि आपको पेन फील नहीं होता है. सो वो एक अलग पार्ट था. अदरवाइज उनके लिए लास्ट का ऑप्शन यही रहता है कि आप सर्जरी करिए सर, ये आपका डिस्क जो है ये चेंज हो जाएगा, सर्टेन थिंग है. सो लेते हैं. देन one was a doctor there, and then he advised that
if you can reduce the weight, if you can work on your weight, you can reduce around 15 kg, so then you can avoid this surgery part. So वो एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिसको एक डिस्क का प्रॉब्लम हो, आपको कोई वेट उठाने के लिए मना करा है, एंड आप रनिंग नहीं कर सकते कि इसमें एक जर्क और इसमें इंजरी आने के चांसेस रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक लिमिटेड हो गया था मेरे लिए कि मैं वेट रिड्यूस कैसे करूं, क्योंकि खाने वाने पे काफ़ी हम कोशिश करते थे कि ये हो, बट आई थिंक उतना वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता जिस धीरे लाइफ में आते हैं। तो एक साइकिलिंग एक स्पोर्ट्स जैसा एक मैंने काफ़ी वर्कआउट करके गूगल पे एंड देन देखा कि ठीक है, दिस इज द वन स्पोर्ट्स वेरिएंट you get very less chances for getting the injured. Okay, so around 2017 अगस्त और सितंबर में मैंने एक साइकिल परचेज किया था डिकैथलॉन से, एंड देन उसके बाद से धीरे धीरे वो एक साइकिलिंग स्टार्ट करा, एंड दैट टाइम आई वाज अराउंड 88.8 और 9 kg। सो वहाँ से एक डेली जो है एक मॉर्निंग की एक नई शुरुआत हो गई थी, एंड फिर ये रहता था कि ऑफिस जो है हमारा जो है वो डेली है, सो 7:40 और 7:50 के बीच में आपको ऑफिस के लिए निकलना होता है। तो कहीं ना कहीं एक मेरे पास लिमिटेड टाइम स्लॉट था कि मॉर्निंग में 5 o'clock उठो, उसके बाद एकदम जल्दी से साइकिलिंग करके अराउंड 2 hours की या 2.5 hours के लिए आप साइकिलिंग करके एंड देन वापस कम बैक टू होम एंड देन गेट इट रेडी फॉर द ऑफिस। सो वो धीरे धीरे एक्टिविटी एक स्टार्ट हुई, एंड देन जब आपको 1 month और 2 month में एक धीरे धीरे लगता है कि हाँ आपका एक वेट रिड्यूस हो रहा है, एक कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव साइन मिलता है, तो एक काफ़ी इंटरनली आप मोटिवेटेड रहते हैं कि ठीक है, वट एवर द लाइक थिंग्स यू हैव पिक्ड अप, दैट्स जो भी आपने एक स्पोर्ट्स पकड़ा है एंड उससे आपको एक बेनिफिट हो रहा है। सो वो कहीं ना कहीं एक डेली एक मेरे लिए मोटिवेशन था। मैं रेगुलरली एक वेट चेक करता था, एंड इवन अगर वेट में मेरे को 100 ग्राम भी अगर कम होता था, अगर मैं लाइक 88 था और उसमें से नेक्स्ट डे मेरे को मॉर्निंग में साइकिलिंग करके अगर वो 100 ग्राम भी कम होता था, तो वो एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता था। और मेरे ख्याल से एक वही मोटिवेशन मेरे एक साथ रहा जिसने कि मेरे को बीच में ये अपना जितना भी मैंने ये इवेंट लिया था उसको स्किप करने का चांस नहीं मिला, बिकॉज बहुत ऐसे मेरे साथ फ्रेंड्स थे जो कि नॉर्मली बड़े खुशी और शौक होके मतलब साइकिलिंग की स्टार्ट करेंगे, साइकिल लेके आते हैं, बट मैं आई थिंक मैंने देखा है कि वो अराउंड 1 month और 2 month के बाद उसमें फिर कोई ना कोई किसी के कपड़े ही सूख रहे होते हैं या टॉवल उसमें सूख रहे होते हैं। सो उसको कंटिन्यू करना एक बड़ा चैलेंजिंग होता है। आपको मैक्सिमम दिखेंगे कि आपने जिम स्टार्ट करा है, आपने रनिंग स्टार्ट करी है, आपने कोई भी इवेंट स्टार्ट करा है, बट द मोर चैलेंजिंग कि जितने आप पेशेंस के साथ, जितना आप मोटिवेटेड होके आप उसको स्टार्ट करते हो, उसको कंटिन्यू करना उससे बड़ा चैलेंज है। सो अत्य भाई वो एक कहीं ना कहीं एक चलता रहा एंड उससे एक मोटिवेशन मिलता रहा। देन फिर क्या होता है कि over a 3 month or 4 month you associated with the different friend in the cycling community. I joined multiple groups there in the cycling, so I started with this Indrapuram cycling club, and then I found that okay, there are multiple people over there who had lot of advices to okay, आप फर्दर ये वाला इवेंट ज्वाइन करिए, आप ये एक ओडेक्स क्लब होता है जो कि बाहर से रेगुलेट होता है इसी का, एंड देन उनके साथ में आपका 200 किलोमीटर का कोई राइड था। देन आई हर्ड कि अच्छा 200 किलोमीटर्स कैसे राइड करते हैं ये, मतलब अभी तो हमें मतलब ये 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर ही इतना बड़ा चैलेंज लगता है। सो वहाँ से एक एंड्योरेंस ये इवेंट जो होते हैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट जो होते हैं, वो एक धीरे धीरे मैंने करना स्टार्ट किया, जिसमें कि टाइम स्लॉट होता है आपके पास में। लाइक फॉर एग्जांपल if you have opted for 200 kilometer, then you will get 13.5 hours for finishing it, and then so on 300 kilometer for 20 hour, 400 within 27 hour, and then 600 within 40 hours. So I keep picking up those event, and then slowly I found okay, ठीक है, मतलब कि मेरे को कोई एक फेलियर नहीं मिला कहीं, ऐसा मेरे को एक कोई सीन नहीं मिला कि हाँ ठीक है कि मैंने 400 किलोमीटर वाला ज्वाइन किया आज इवेंट एंड मैंने कहीं रास्ते में अच्छा मेरे से इससे आगे नहीं हो रहा है कोई, तो वो मेरा एक लक कहीं ना कहीं जुड़ा रहा
कि वो कहीं पर मेरा जो है कोई भी ऐसा इवेंट मिस नहीं हुआ, एंड जितने भी इवेंट मैंने पिक किए मैक्सिमम सारे मैं सक्सेसफुली फिनिश करके आया। सो समर्थ भाई, वहाँ से मेरा एक साइकिलिंग वाले के साथ में धीरे धीरे क्या हुआ कि डेली मैं इवेंट ज्वाइन करता रहा, एंड एक साथ में इतनी कम्युनिटी बढ़ती रही। मैं एक नॉर्मली इसको इस टाइप से रिलेट करना चाहूँगा कि जब मैं साइकिलिंग नहीं करता था तो मेरे फेसबुक फ्रेंड जो है अराउंड 127-128 होंगे। एंड आई नो कि रिसेंट में एक आई थिंक फेसबुक पे शायद बार होता है कि 5000 फ्रेंड के बाद में उसमें आप ऐड नहीं कर सकते, देन आई फाउंड कि मेरे 5000 से ऊपर हो चुके हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हम आप जिस स्पोर्ट में रहते हैं तो पीपल आपको धीरे धीरे आपको जानते हैं, आप कोई भी अच्छा काम करते हैं, कोई भी अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, तो धीरे धीरे आपको वहाँ से काफ़ी उनसे एक इनकरेज, आपको एक सर्टेन वो मिलते रहते हैं उसमें, एंड वो एक कहीं ना कहीं आपको कंटिन्यूस एक मोटिवेशन देता रहता है किसी भी स्पोर्ट्स में बने रहने के लिए। सो अगेन वो साथ में कहीं ना कहीं मेरे को ये लगा कि ओवर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ और 8 मंथ कहीं ना कहीं मैं मतलब जो है 80 kg से जो है 70 वाली सीरीज में आने लग गया। सो उससे एक जो डॉक्टर ने एडवाइस किया था वो सबसे बेस्ट मेरे को जो बेनिफिट हुआ वो जो मेरा स्लिप डिस्क का पेन था, सबसे बेस्ट मेरे को जो अचीवमेंट मेरे को मिला, एक मेरे को जो बेनिफिट मिला वो दैट वाज द ओनली थिंग, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर whenever we were going for this any customer meeting in the office, so अगर दिल्ली से मैं गुड़गांव जा रहा हूँ, इफ इट इज़ ए मेट्रो वे, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो 1.5 hour और 2 hours की अगर मेट्रो राइड के बाद आई कांट इवन स्टैंड प्रॉपरली बिफोर मैं बता रहा हूँ जब तक मैंने साइकिलिंग ये ज्वाइन नहीं किया था। एंड देन वो मेरे को एक कहीं ना कहीं उसका एक बेनिफिट वहीं से दिखने लग गया था। वंस आई फाउंड कि ओके ठीक है, आई वाज मूविंग टू एनी लोकेशन, एंड अब वो मेरे को ऐसा कहीं पे खड़े होने में या वो से तो एक कहीं भी पेन वगैरह या कोई ऐसा चीज़ जो है वो एटलीस्ट वो रिड्यूस हो गया काफ़ी, वो चीज़ एक पार्ट मेरा काफ़ी इम्प्रूव हुआ इसमें। सो समर्थ भाई, वहाँ से एक थिंग्स चलता रहे, कम्युनिटी से लोग मिलते रहे, सबका एक एनकरेज मिलता रहा, एंड बेस्ट पार्ट जो था कि जो एक ऑफिस का, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड आई मीन दिस IT सर्विसेज, एंड IT सर्विसेज में आप समझ सकते हैं कि एक कंटिन्यूस एक कहीं ना कहीं एक प्रेशर बना रहता है आपको सर्विसेज का, एक कस्टमर हैंडलिंग का, एस्केलेशंस डेली के नए नए आपके पास चैलेंज आते हैं, एंड योर टीम। सो ऑफिस लाइफ को मैनेज करना, फैमिली को मैनेज करना, एंड फ्रेंड सर्किल को, सो वो तीनों एक कहीं ना कहीं इतना इम्पोर्टेंट होते हैं कि उन तीनों से आप टाइम निकालते हैं, तब आपको धीरे धीरे कहीं लगता है कि हाँ ठीक है, मैं अपना ये वाला पैशंस जो है कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। सो वो एक मैनेज करना एक थोड़ा ट्रिकी था। सो एंड देन आई फाउंड कि आई वाज लकी कि जो मेरा वहाँ मैनेजमेंट है सिस्टनेट ग्लोबल में, सो वहाँ पर मेरा रिपोर्टिंग मैनेजर मैं कहता हूँ, मेरा मैनेजमेंट कहता हूँ। सो कहीं ना कहीं ये होता था कि हम कोई भी एक इवेंट करके आता था, मैं कोई भी एक अचीवमेंट करता था, तो वहाँ पर सब एक सेलिब्रेशन होता था, सबकी तरफ से काफ़ी इंकरेज मिलता था। सो एंड कहीं ना कहीं मेरे बैक एंड में, क्योंकि बिकॉज हैं तो वो सारे मैं वीकेंड वगैरह पे करूँ, सो दैट कि मेरे को कम से कम मतलब ऑफिस से जो है ऑफ लेना पड़े। तो इस तरह से ऑफिस से तो मतलब काफ़ी मतलब जो है सपोर्ट मिला। एंड फैमिली के साथ में ये रहा था कि फैमिली का इसलिए इनकरेज मिला बिकॉज दे हैव सीन में कि यार इसको इतना पेन का प्रॉब्लम था, इसको कहीं ना कहीं इतना फिजिकली प्रॉब्लम था। सो उनको लगता था कि इस बहाने कहीं ना कहीं ये है कि मैंने जो है इस पेन को जो है काफ़ी रिड्यूस कर दिया है, इस प्रॉब्लम को काफ़ी जो है मैंने एटलीस्ट कंट्रोल में कर लिया है। सो कहीं ना कहीं उनको लगता था कि इससे इसको खुशी मिलती है, तो एटलीस्ट दे कैन मैनेज कि हाँ ठीक है, अब जो है वीकेंड वगैरह पे हाँ पता है कि यार इसका कोई ना कोई साइकिलिंग इवेंट होगा कहीं हो तो लिमिटेड टाइम में। सो धीरे धीरे सबके साथ में जो है वो ट्यूनिंग अच्छी हो गई। फ्रेंड्स को पता है कि हाँ पहले जो है जब भी वीकेंड होता था तो चलो ठीक है कहीं ना कहीं हम इंजॉय करने जाते हैं, कुछ थिंग्स करते हैं। एंड देन ओवर ए पीरियड दे आल्सो अंडरस्टूड कि हाँ ठीक है यार इसके लिए ये है कि ठीक है ऑफिस लाइफ भी कर रहा है एंड देन स्पोर्ट्स भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं टाइम का हम मैनेजमेंट करते ही हैं। तो एक टाइम मैनेजमेंट एक अलग सा पार्ट है इसके साथ में। तो
तो समझ भाई इस तरह से जो है एक लाइफ चलती जा रही है इसमें। एंड यस फादर जो है वो लास्ट में उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ में एसोसिएटेड थे अकाउंट डिपार्टमेंट में। सो स्टार्टिंग से उनका ये रहा था कि जहाँ पर पोस्टिंग होती थी वहाँ से हम कहीं ना कहीं उन एरिया में, उन लोकेशंस में, उन सिटीज़ में हमारा एसोसिएशन रहता था। सो दैट्स वाई जब मोदी नगर शिफ्टिंग थी, मेरा बर्थ प्लेस भी वहीं पे है मोदी नगर में। एंड देयर आई बीन फॉर अराउंड 24 ईयर। सो वहाँ पर इतना एक लंबा टाइम रहा। उसके बाद धीरे धीरे फिर हम गाजियाबाद शिफ्ट, बिकॉज यहाँ पर पोस्टिंग हो गया था। सो अब तब से लाइफ जो है गाजियाबाद से ही चल रहा है। सो वो मैनेज हो रहा है। सो वो वाला पार्ट जो है एक कंटिन्यूस चलता जा रहा है थिंग्स में। एंड एक चीज़ पे और थिंग्स शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज एक मेरे पास पॉइंट आया था कि स्टूडेंट्स का कि ठीक है मतलब कि इतना कहीं ना कहीं हमें जैसे आज की डेट में मैं 43 ईयर्स हो गया हूँ, तो स्पेशली ये कहते थे कि यार आप पहले से क्यों नहीं आए। मतलब मेरा इवन कोच भी बोलता है, बिकॉज फ्रॉम लास्ट 1 year आई एम टेकिंग ए प्रोफेशनल कोचिंग फ्रॉम Mr. Arvind Pawar, so who is a like national cyclist and working in a railway. So तो उनका ये रहता था कि ओके यार आप मतलब अगर 17 ईयर या 18 ईयर की लाइफ से करते हैं तो एक कहीं ना कहीं लगता था कि अगर हम देखें शुरू की, आप देखेंगे मैक्सिमम लोगों ने ये फेस किया है कहीं ना कहीं एक कैरियर की डायरेक्शन या कोई भी आपका जो थिंग्स होता था, तो पहले काउंसलिंग इतना कॉमन नहीं था कहीं पर भी। आई थिंक ये होता था कि आई कैन अंडरस्टैंड कि जैसे ही आपको 8th क्लास 6th क्लास 7th क्लास पहुँचते हैं एंड देन पेरेंट्स का रहता था ओके चलो इसको जो है अगर उसने जो है अकाउंट दिला दिया तो ठीक है, देन अब वो उसको सीए ही बनना है। अगर उसको गलती से उसने जो है उसे बोल दिया कि हाँ मेरे को बायोलॉजी है, तो मतलब वो कहीं ना कहीं क्या होता था कि उससे एक एक्सपेक्टेशन फिक्स हो जाती थी बच्चे की। वो फैमिली से मैक्सिमम मैं देखता था, इवन मेरा जितना भी सर्कल था वो कहीं ना कहीं रहता था कि हाँ ठीक है, एक फैमिली जो डिसाइड कर लेता था तो उसके बेस पे ही उसका फर्दर जो है उसका एक गोल दे देते थे। दैट डजंट मैटर कि हाँ ठीक है आई थिंक उसका लास्ट का कैसे चल रहा है, वो किस किस सब्जेक्ट में कितना वीक है कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए मतलब फर्दर किस लाइन में जाना चाहिए, कितने ऑप्शन उसके पास ओपन है। सो एक टारगेट अगर मैं कहता हूँ, एक गोल कहता हूँ, तो वो आई कैन सी कि अगर मैं 1970 1980 की बात करूँ तो आई थिंक इतना शायद कॉमन नहीं था, इतना काउंसलिंग और करियर काउंसलिंग का इतना फेमस नहीं था उस टाइम पर। सो हम कहीं ना कहीं ये रहता था कि ओके ठीक है फ्रेंड सर्कल, अच्छा यार हम साथ में आ रहे हैं एंड देन आई फाउंड कि अच्छा चलो उन्होंने क्या वो बायोलॉजी लिया है, चलो चलो मैं भी बायोलॉजी ले लेता हूँ, बिकॉज क्यों अदरवाइज फ्रेंड अलग हो जाएंगे। सो तो हम वहाँ पर कहीं ना कहीं सेम चीज़ में अगर मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट्स में जैसे फ्रेंड कहते हैं कि आपने उसमें, क्योंकि उस समय कोई एक एडवाइस नहीं मिलती थी, कहीं ना कहीं एक हमें जो है एक राइट एडवाइस या एक टेक्निकल नॉलेज या एक काफ़ी एक वैल्यूड एक इन्फॉर्मेशन उतना उस समय जो है कॉमन नहीं रहता था। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं कि ऑप्शंस उस समय मिलते गए, साथ साथ जैसे आपको कंफर्टेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप गिर जाते हैं, वो वाला पार्ट है। तो एक कहीं ना कहीं बोलूँगा मैं एक काउंसलिंग का एक काफ़ी गैप था, एटलीस्ट फॉर मी। आई कैंट कमेंट फॉर अदर पीपल, बट एटलीस्ट उस टाइम पे मेरे को लगता था कि कहीं ना कहीं हमें ये रहता था कि वट एवर वी वर डिसाइडिंग वी आर गोइंग विद द सेम ओनली, जो कि हमें एक कन्वीनियंट लगता था कि चलो ठीक है ये थिंग्स करते हैं। तो समझ भाई इसलिए यहाँ से एक साइकिलिंग जो है मेरे मतलब कहीं ना कहीं कैरियर के साथ में एक मेरा एक अलग से पैशन जो है वो ऐड हो गया। सो दिस द थिंग्स एंड देन in the year of 2018 I heard about this part that event that is called Paris Brest Paris। so एक इवेंट है जो कि यूरोप में होता है एंड वंस इन ए 4 year होता है, जैसे आपने अभी इनिशियल स्टेज में भी बताया था। सो जब यहाँ पर इंडिया में मेरे जो इवेंट्स थे, तो इवेंट में मैंने 1200 किलोमीटर एंड 1400 किलोमीटर तक भी कर रखा है यहाँ पर। एंड जैसे मैंने ऑलरेडी बोला था कि हर एक इवेंट जो हर एक
कोई भी राइड होता है, सो उसमें एक टाइम बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 1400 किलोमीटर भी करके गए तो उसके लिए भी हमें मतलब 112 आवर्स मिलते थे। सो जो कि हमने 88 आवर्स के अंडर में किया था इंडिया में, जो विच वाज स्टार्टिंग फ्रॉम नोएडा, देन गोइंग थ्रू दिस पंजाब एंड जम्मू, देन अगेन कम बैक टू पठानकोट एंड डलहौजी। सो हर एक के लिए मतलब एंड एवरी इवेंट हैज़ कि आपके पास टोटल टाइम है, आप उसमें ही आपको जो है आपको सो सकते हो, आप खा सकते हो, आपको जो भी एक्टिविटी करना है आपके पास वो टाइम है, क्लॉक कभी नहीं रुकती है आपके पास में। सो आपको पूरा वो टाइम मैनेजमेंट के साथ में करना पड़ता है। आपका जो भी चाहे पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपके बाइक में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, पंचर हो गया, कोई भी प्रॉब्लम होगा, आपका क्लॉक कभी नहीं रुकता। जो आपका टाइम गिवन टाइम है आपको उसके अकॉर्डिंग इवेंट करना होता है। सो ये सारे जो थे ये मेरे इवेंट्स सारे यहाँ इंडिया में होके। देन आई हर्ड अबाउट दिस PBP, पेरिस ब्रेस्ट पेरिस, एंड बिकॉज वो 1200 किलोमीटर है तो हमारे लिए ये नहीं था कि हाँ ठीक है हमने तो इंडिया में 1200 किलोमीटर हमने इजीली कर रखा है, एंड देन 1400 किलोमीटर भी कर रखा है, सो ये तो इजीली कर लेंगे। बट जो ये इवेंट है पेरिस ब्रेस्ट पेरिस, उसका थोड़ा एक टेक्निकल एक पार्ट क्या है कि उसमें एलिवेशन जो है वो 12,000 किलोमीटर जो है उसमें मिनिमम एलिवेशन है। सो यू कैन अंडरस्टैंड इन द एंटायर 1200 किलोमीटर आपको जो है पूरा एलिवेशन, रोलिंग एलिवेशन चलता रहेगा आपको। इट इज़ समथिंग लाइक दैट इफ वन पर्सन इज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू करनाल एंड उसको पता है कि वहाँ तक जाते जाते उसको करीब 40-50 फ्लाईओवर आ रहे हैं, सो वो हर एक फ्लाईओवर को चढ़ना होता है ना, तो वो इस टाइप का एक रोलिंग जो है एलिवेशन वो चलता रहता है। सो ये एक टेक्निकल पार्ट था, तो चलो उसके लिए सब प्रिपेयर थे वहाँ पर। एंड संजय जी मुझे आपने ये Sorry. फिर से हाँ जो आपने वर्ड यूज किया था ना अभी, मतलब टेक्निकल डिफिकल्टीज थे, मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट्स बहुत थे ये पर्टिकुलर टूर में, और जो हाँ। वर्ड आपने यूज किया प्रिपेयर, यस अभी प्रिपेयर करने वैसे लाइक मैं अभी भी सरप्राइज हूँ। सो यू स्टार्टेड ऑफ एट द एज ऑफ 41, आई मीन बैक इन 2017 October, at the Sure. age of 41 because of a CNS injury, from Yes. needing a surgery, unable to walk almost, to Yes. 2 years later completing 80-hour plus tour on a bicycle. एग्जैक्टली। तो मतलब ये टेक्निकल So- डिफिकल्टीज तो होंगे, प्रिपरेशन हो फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब कैसे हो गया ये? ओके सो इसमें अगर मैं ये कहूँगा कि इवन अगर हम कहते हैं कि कोई भी आज की डेट में हम गोल बनाते हैं किसी भी एरिया में, सो वो ऐसा नहीं होगा कि कोई भी पर्सन, कोई भी चाहे वो स्टूडेंट है चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन है, सो वो उस पीक पर वो इमीडिएट डायरेक्टली जाएगा। सो उसके लिए एक अगेन आपके एक स्लो मूवमेंट होता है। आप कहीं ना कहीं आप, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आज की डेट में कोई भी, अगर मैं स्पेसिफिकली साइकिलिंग का ही हम इवेंट बात करें तो मैं साइकिलिंग को अगर टच करता हूँ तो ऐसा नहीं होगा कि उसने डे 1 में ही जो है वो हो सकता है कि 500 किलोमीटर करके आ रहा है या 1000 किलोमीटर करके आ रहा है या 100 किलोमीटर करके आ रहा है। कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन जब भी स्टार्ट करता है तो हो सकता है उसके लिए उस दिन का वो 20 किलोमीटर जा रहा है या 30 किलोमीटर जा रहा है, उसके लिए वही अचीवमेंट है एंड उसमें उसको कई लर्निंग लेनी पड़ती है। डेफिनेट बात है क्योंकि हमें एक जो है इवेंट एक इजी लगता है, साइकिल जो है लगता है हमें, क्योंकि बचपन से हमें पता है कि जब हम स्कूल जाना शुरू किया था तो हमें ये पता है कि कहीं ना कहीं सबको कोई हीरो या एटलस या इस टाइप की एक साइकिल मिलती थी बेसिक, जो हम इंडियंस यूज करते थे। तो साइकिलिंग कहीं ना कहीं ऐसा एक पार्ट है, मतलब मैं ये बोलूँगा कि आप एक बार बचपन में कभी सीख लेते तो आप इसको भूलते नहीं। आप किसी भी एज में आ जाएंगे तो एटलीस्ट ये है कि आप उसको मैनेज कर सकते हैं कि हाँ यार, मतलब ये नहीं हो सकता कि आपने, चलो मैंने ये एक्टिविटी सीखी थी बचपन में और मैं इसको भूल गया हूँ, मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा था, हो सकता है मैं उसको भूल गया हूँ, लेकिन एक साइकिलिंग ऐसा है कि आप आज की डेट में भी अगर कोई 50 ईयर्स का भी हो गया है, 60 ईयर्स का भी हो गया एंड अगर इफ ही सेइंग कि हाँ ठीक है मैं जब 10 ईयर या 15 ईयर में था मैं साइकिलिंग चलाता था, तो वो ऐसा नहीं है कि वो आज भी अगर साइकिल ट्राई करेगा तो चला नहीं सकता है। तो साइकिलिंग चलाना एक अलग पार्ट है, लेकिन यस कि जब हम कहते हैं कि हम एक लॉन्ग डिस्टेंस वालों को इवेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो 100 किलोमीटर ही है, सो उसके लिए हम जो बोल रहे हैं टेक्निकलिटी क्या है कि ऐसा नहीं है कि बस साइकिलिंग बैठे एंड आपने स्टार्ट कर दिया। आपका हो सकता है कि उससे पहले
जैसे हम कहते हैं कि धीरे धीरे आपके लिए ये होता है कि एक वार्म अप भी एक एक्टिविटी होती है। आपको ये बॉडी उसके लिए, अगर आप रनिंग भी कर रहे हैं तो अब जब तक आप अपनी थोड़ा वार्म अप नहीं करेंगे, सो दैट कि आपकी मसल्स वगैरह उसके अकॉर्डिंग मतलब वो रेडी हो चुकी हैं, वो एक्सेप्ट करने के लिए कि अगर कोई भी इसको एफर्ट लगने वाला है या कोई भी आपका स्पाइक या कोई जार कुछ भी लग रहा है, तो उसके लिए आपका बॉडी रेडी नहीं चाहिए। सो डेफिनेट बात है कि आप कहीं ना कहीं स्टार्ट आप स्मॉल डिस्टेंस से करते हो, आपका 20 किलोमीटर होगा, वो 30 किलोमीटर होगा, एंड डेफिनेटली धीरे धीरे वो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। आपका जब एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, देन अगेन आपने आज 30 किलोमीटर किया, सो हो सकता है कि आपको अब ये रहेगा 30 मेरा इजी हो गया, मैं अब 50 के बारे में सोच सकता हूँ। आप मैंने 50 कर लिया, ओके नाउ आई कैन प्लान फॉर 70 किलोमीटर और 100 किलोमीटर। ओके अच्छा, मेरे को आज 50 किलोमीटर में ये प्रॉब्लम लगा कि मैं आज घर से पानी कम ले गया, उसमें इलेक्ट्रोल होना चाहिए, कोई इलेक्ट्रोलाइट वाला टाइप का लिक्विड होना चाहिए, बिकॉज जब हम राइड करते हैं डेफिनेट बात है कि हमारी एनर्जी बर्न होती है, हमारा डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, हर एक का उतना इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि शुरू में मेरे को पता है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी साइकिलिंग की, एंड देन आई जस्ट पिक्ड अप एंड आई मूव फॉर दिस NH हाईवे। तो देन आई फाउंड कि उस दिन मेरे शायद 32 किलोमीटर होगा, एंड देन आई वाज इवन इन दैट कंडीशन कि मैं घर पहुंच जाऊं तो ऐसा लग रहा था कि ऐसे स्ट्रेचर पे लेट जाऊंगा, बिकॉज मैं उस समय बस ओनली वाटर लिया था। मैंने कोई डेफिनेट बात है कि प्री राइड जैसे हम कहते हैं कि अगर आप इतने लंबे राइड पे जा रहे हो तो हो सकता है कि आपने कुछ ना कुछ 1-2 घंटे पहले आपने ओट्स या कोई ऐसा चीज खा लिया प्री राइड का, सो दैट कि आपको एक फ्यूल एनर्जी रहेगा। आपने हो सकता है कि बनाना ले लिया, कोई आपने इस टाइप का ऑरेंज या कुछ पार्ट ले लिया है कि सो दैट कि आपको कहीं ना कहीं एनर्जी आपको ड्यूरिंग द राइड, ड्यूरिंग द इवेंट, ड्यूरिंग द कोर्स आपको बनी रहे। आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मैं 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर हो गया, आई एम फीलिंग थर्स्टी, आई एम फीलिंग हंग्री, सो आप एक बाइट ले सकते हो सकता है कि आप साथ में चॉकलेट ले जाओ, कुछ भी। तो धीरे धीरे वो एक लर्निंग आती है, एंड देन उसके बेस पे ही आपको लगता है कि हाँ अब मेरे को 50 किलोमीटर में एक 100 किलोमीटर पहुंचाऊं, एंड देन वंस यू क्रॉस दिस 100 वाला पार्ट, देन यू नो कि हाँ यार मेरे को राइड पे जाना होता है, तो उसके लिए मेरे को क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, मेरे को किस किस टाइप के मेरे को साइकिलिंग के जो हैं वो वेयर्स करने हैं, कि मेरी जर्सी कैसी होनी चाहिए, मेरा जो शॉर्ट्स हैं वो किस टाइप के होने चाहिए, बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड। आप जस्ट एक इमेजिन करिए कि एक साइकिल का जो सैडल होता है वो कितना आपका 4 से 5 इंच होता है, ठीक है। एंड देन आप समझिए कि अगर कोई 100 किलोमीटर करने जाता है तो उसको कम से कम जो है 5 घंटे, या किसी को हो सकता है स्लो राइडर है तो 6 घंटे भी लगते हैं, तो 6 घंटे उसको उस सैडल पे बैठना है। तो धीरे धीरे आपका ये लर्निंग का पार्ट ही होता है कि ठीक है, मेरे को जो साइकिलिंग का जो शॉर्ट और साइकिलिंग के जो बिब मेरे को पहनने हैं, तो उसमें वो फोम वाले या जेल टाइप के होंगे, सो दैट कि मेरे को उस समय अनकंफर्ट इतना नहीं होना चाहिए। मेरे को हो सकता है कि उसके अकॉर्डिंग मैं कोई जो है साथ में अपना कोई वाटर के लिए अपना बैग ले जा रहा हूँ, साथ में आप 2-2 बोतल रख रहे हैं, आपको पता रहेगा धीरे धीरे, क्योंकि आपने स्टार्टिंग स्मॉल से किया था, डिस्टेंस से 20, 30, 40, एंड यू अंडरस्टूड योर बॉडी कि हाँ मेरे को अगर 50 किलोमीटर में मेरे को इतनी दूर में अगर पानी पीता हूँ तो मेरा डेफिनेट बात है कि मेरा डिहाइड्रेशन मैनेज होता रहता है। तो एक इस पार्ट को मैं समझ पाई कहूँगा कि जब आप ये वाले धीरे धीरे लेवल क्रॉस करते हैं, देन आपको अपनी बॉडी की जो है आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ ठीक है, कहाँ कहाँ पे मेरे को जो है क्या क्या चीज़ प्रिकॉशनली ध्यान रखना है। अगर मेरे को 200 किलोमीटर के लिए जाना है तो हाँ ठीक है, हो सकता है कि मेरे को 5 आवर्स के बाद में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना है, या 2 आवर्स के बाद में स्ट्रेचिंग करना है। अब हर एक बॉडी का डिफरेंट जो है पैटर्न रहता है। उसको मे भी हो सकता है कि अगर मैं राइड कर रहा हूँ तो मेरे को लगता है कि चलो ठीक है, मेरे को अगर से 30 मिनट हो गया, उसके बाद में मेरे को हो सकता है कि वाटर की नीड होगी, ठीक है, क्योंकि मेरा डेफिनेट बात है कि मेरा अलग सिस्टम रहेगा। एंड सेम वे में अगर हो सकता है कि मेरे साथ दूसरा पर्सन जा रहा है, तो हो सकता है उसको पहली जो है उसमें एक वाटर इनटेक की उसको नीड लगेगी। तो हर एक बॉडी डिफरेंटली जो है रिएक्ट करती है हर पर्सन की, ओके। एंड उसके अकॉर्डिंग वो जो है फर्दर जब वो उसने 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 100 किलोमीटर क्रॉस किया, तो देन ही नोज कि मेरे को 200 किलोमीटर जाना है, और या 400 किलोमीटर कवर करना है, या 1000 करना है, तो उसके लिए मेरे को कितना प्रिपरेशन करना है। मेरे को उसके लिए डेफिनेट बात है कि अब जब हम कहते हैं कि धीरे धीरे हम, ऐसा नहीं है कि हम राइड के लिए ही प्रिपेयर हुए हैं, हमें अपना फिजिकल बॉडी भी जो है वो कहीं ना कहीं उसको भी वर्कआउट करना पड़ता है। अगर आप ये समझिए कि आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, बिकॉज आप टाइम वेस्ट वाला इवेंट कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं कर रहे हैं। पिकनिक वाला ये होता है कि हाँ कहीं ना कहीं ये है कि आपके साथ एक सपोर्ट व्हीकल चल रहा है,
आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है तो ठीक है, आपको जब तक मन करा आपने चलाई, उसके बाद थोड़ी देर में उसमें आप व्हीकल में बैठे, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, देन फर्दर फिर राइड स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ पर आप पे कहीं ना कहीं कोई टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है, जब चाहे आप रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो टाइम बेस्ड वाले कोई भी इवेंट होंगे उसमें आपके पास ये सब चीज़ जो है रिलैक्सेशन नहीं होता है, तो इसलिए आपको सब चीज़ प्लान करके चलना होता है कि आपको कितने डिस्टेंस पर आपको ब्रेक लेना है, कितने डिस्टेंस पे आपको हो सकता है कि फूड का इंटेक करना है, कितने डिस्टेंस पे आपको हो सकता है कि अपने साथ भी एक स्मॉल मील्स आप साथ में लेते हैं, चाहे वो बनाना है, चाहे वो एनर्जी बार है, ओके, या चाहे कोई आप हो सकता है ड्राई फ्रूट लेके चल रहे हैं साथ में, तो कोई भी थिंग्स हैं आपको, तो आपको अपने बॉडी के अकॉर्डिंग वो उतना पूरा प्लान करके तब चलना होता है। तो धीरे धीरे आपकी जो ये लर्निंग होती है स्मॉल राइड से लेके बिग राइड तक, वही आपके जो है उसमें काम आती है। सो वी नो एंड सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट होता है इसमें, जो होता है आपका टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ जो आपका स्लीपिंग मैनेजमेंट होता है, जो बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आप 600 फॉर एग्जांपल मैं 600 किलोमीटर की राइड कर लेता हूँ, जिसके लिए कि आपको 40 आवर्स मिलते हैं, अगर मैं ओडेक्स के अकॉर्डिंग बताता हूँ उसका जो प्लेटफॉर्म है। सो ओडेक्स के अकॉर्डिंग जो है आपको जो अगर 40 आवर्स करना है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आप कंटिन्यूस जा रहे हैं, एंड देन डेफिनेट बात है कि आपको कहीं ना कहीं रात को रुकना भी है आपको, क्योंकि जैसे आपका 24 आवर 26 आवर कंटिन्यूस आप राइड करते हैं, तो आपको उसके बाद कहीं ना कहीं एक जो है नींद के आपको झटके भी आने लग जाएंगे राइड करते हुए। इवन कई जगह जो है इस टाइप के एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, बिकॉज क्या होता है कि आप जब राइड करते रहते हैं तो आपको हो सकता है कि माइंड आपका धीरे धीरे जो है वो सो जाता है, बिकॉज क्योंकि आपका नींद पूरा नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपको पता है कि मेरे को वो कैसे मैनेज करना है, बिकॉज तो इसी राइड के मैं कहता हूँ कि साइकिलिंग में ही मेरे धीरे धीरे एक जो सबसे बेस्ट पार्ट मैंने जो लर्न किया वो किया था, एक पावर नैप की पावर मेरे को पता चली थी। तो पावर नैप बोलते हैं तो उसमें बॉडी पावर है, तो पावर नैप की पावर मेरे को साइकिलिंग में पता चला था। अदरवाइज आई वाज थिंकिंग कि यार ये क्या करते हैं, क्योंकि कई जगह कई कंट्रीज में भी आप देखोगे तो ड्यूरिंग द वर्क भी उनको जो है पावर नैप के लिए ऑप्शंस मिलते हैं, सो दैट पीपल कैन गो फॉर ए पावर नैप फॉर 10 मिनट और 15 मिनट, एंड बिकॉज उसके बाद उनको उतनी ही नई एनर्जी के साथ में वो स्टार्ट करते हैं काम। सो सेम हम क्या कहते हैं कि अगर आपके पास एक कंटिन्यूस कोई राइड इवेंट चल रहा है आपका, एंड यू नो कि मैं इसमें मेरे को अगर टाइम सेव करना है, मैं बहुत लंबा जो है सो नहीं सकता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं 4 घंटे वहाँ पर जो है एक अच्छे से मैं एक स्लीप लेके तब स्टार्ट करूँ, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो मे बी आप जो है 30 मिनट का पावर नैप या 15 मिनट के पावर नैप, मल्टीपल पावर नैप करके आप वो राइड को इवेंट करते हैं। सो वो एक कहीं ना कहीं आपकी बॉडी उस चीज़ को एडप्ट करती है कि ठीक है, आपने इवन मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ, लेकिन मैंने अगर 15 मिनट का पावर नैप लिया है और उसके बाद मैंने 2 आवर्स की राइड करी है, फिर मैंने एक 15 मिनट का उसमें ऐड कर दिया, फिर मैं इस टाइप का कंटिन्यूस करके, एंड देन मैंने वो जो है 40 आवर्स के अंदर में मैं हो सकता है कि 35 आवर्स में कंप्लीट करिए, 36 में करिए। सो वो मैंने जो कहीं ना कहीं मैंने जो स्लीपिंग का टाइम मैंने सेव किया, वो मैंने उसको पावर नैप में थोड़ा ब्रेक करके, हो सकता है मैं 4 घंटे का एक वहाँ पर सोता, उसके बाद भी मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को स्ट्रोक आते राइड में, तो मैंने उसको ब्रेक करा 15 मिनट्स में या 20 मिनट्स में ब्रेक करके, एंड देन हो सकता है कि मैंने जो वो 4 आवर्स की जगह में मैंने हो सकता है कि 2 आवर्स में ही वो मैनेज कर लिया वो पूरे राइड में। सो वो आपका एक तरह से कहते हैं ना कि आपने एक टाइम मैनेजमेंट सीखा कि आपको हाँ कहीं पर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका क्लॉक चलता जा रहा है। आपने वो सोने का देख लिया, आपको खाना कितना जल्दी करना है वहाँ पर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो है काफ़ी बातों में आप लग गए, वो टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो। बिकॉज राइड में क्या होता है कि आपके पास 50 और 70 पीपल और 20 पीपल समथिंग कोई भी नंबर सोच सकते हैं कितने भी इवेंट में जा रहे हैं, एंड योर फ्रेंड्स आर आल्सो राइडिंग देयर अलोंग विद यू। सो ऐसा नहीं होता, बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं ये होता है कि चलो ठीक है हम एज ए ग्रुप में जा रहे हैं, साथ में चलेंगे, बिकॉज किसी को भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो सारा चीज़ बड़ा एक मैनेज करना पड़ता है। बिकॉज इफ़ यू आर इन अ ग्रुप, सो वो एक एडवांटेज भी होता है, एक डिसएडवांटेज भी होता है। हम जब कहते हैं कि सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं तो हम कहते हैं ना, जब स्टडी में हम बैठते हैं तो चलो यार 4 दोस्त साथ में पढ़ रहे, लेकिन अगर 4 दोस्त में से अगर 3 दोस्त ने कहा चलो ठीक है यार फ्री हो गए थोड़ा, चलो थोड़ी देर मूवी देख लेते हैं या कोई बाहर जाके फन करते हैं, तो डेफिनेट बात है कि कहीं ना कहीं जो 4th या 5th पर्सन रहता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं अपना वो ऑप्शन छोड़ के उनके साथ में शामिल होना पड़ता है, उनके साथ में जो है पार्टिसिपेट करना पड़ता है उस थिंग्स में, तो किसी ना किसी का लॉस होता है। तो सेम अगर आप राइड में जा रहे हैं, एंड वी नो कि
कि अगर 5 पीपल में से अगर एक राइडर को कहीं ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, दो को आ रही है प्रॉब्लम, सो वो डेफिनेटली पता है कि आप हो सकता है कि उनके साथ बॉन्डिंग है, आप उनके लिए वेट कर रहे हो, आप उनका कोई फ्लैट टायर हुआ है, कोई पंचर हो गया, तो हो सकता है आप उनके साथ में खड़े हो, तो क्लॉक अगर उनकी भी खराब हो रही है तो आपकी भी खराब हो रही है। तो ओवरऑल क्या होता है कि इसलिए ये आपके सारे सीनेरियो, सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, आप ये 100 किलोमीटर, 200, 300, 400 में आप धीरे धीरे पूरे समझ चुके होते हो कि मेरे को क्या क्या चीज़ जो है इसमें प्रिकॉशन लेने हैं, क्या क्या सावधानी लेनी है, मेरे को कैसे किस टाइप का राइड प्लान बनाना है अपना, मेरे को सोलो राइड करनी है, मेरे को ग्रुप में राइड करनी है, मैं कैसे मैनेज करूँगा टाइम में, मेरा स्टेमिना किस टाइप का है, बिकॉज डेली राइड कर करके आपको एक कहीं ना कहीं आपकी अपनी स्ट्रॉन्ग या वीकनेस दोनों पता रहती हैं। आपको हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहता है कि वो बिना नींद के, बिना उसमें जो है प्रॉब्लम हो जाती है, उनको कंटिन्यूस राइड नहीं कर पाते, तो हर एक का एक डिफरेंट पैटर्न होता है। तो वो एक कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि एक ये वाला एक लर्निंग पीरियड साथ में चलता रहा। आप अपनी स्ट्रेंथ पे वर्कआउट करते हैं, हो सकता है आप साथ में जिम भी करते हैं, कोई भी आप, क्योंकि आपको आपकी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होता है, आप साइकिलिंग करते हैं तो आपकी जो है लोअर बॉडी सबसे ज़्यादा है उसमें वर्क करती है, एंड आपका कोर वर्क करता है, आपका लेग मसल्स हैं, वो सारे थिंग्स आपका जो है उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये कहीं ना कहीं साथ में राइड के साथ में आपको इन थिंग्स में भी एक ध्यान रखना होता है। फिर एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है आपका फूड हैबिट। फूड हैबिट सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि डिफ़िकल्ट पार्ट है। जितना आपको मैं मानता हूँ कि एक राइड करना जितना डिफ़िकल्ट पार्ट है, राइड के थ्रू मैनेज करना एक जितना एक टास्क रहता है, उससे बड़ा टास्क होता है कि आप अपने फूड पे कैसे कंट्रोल करते हैं। कोई भी स्पोर्ट्स है उसमें एक कहीं ना कहीं आपको, जब आप कोचिंग लेंगे, एक प्रोफेशनल कोचिंग लेंगे, सबसे पहले वो कहेंगे ठीक है यार, आप अपना शुगर वाला पार्ट जो है बिल्कुल कितना जीरो कर सकते हो। अब बिल्कुल ये थिंग्स रखो, आप कितना जो है ऑयली, आप जंक फूड, आप जो है सॉल्टी आइटम, आप इनको कितना अवॉइड कर सकते हो अपने डेली फूड में से। ठीक है, तो आप अपने फूड को आप जितना इम्प्रूव करोगे, आपका कोई भी इवेंट, कोई भी स्पोर्ट्स है, वो उतना इम्प्रूव होएगा। आप अपने फूड पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, डेफिनेट बात है कहीं ना कहीं आपको जाके एक चैलेंज आएगा फर्दर चल के। सो फूड का बहुत एक रोल होता है। आपका जो फूड इनटेक चल रहा है स्पोर्ट्स के साथ में, वही आपका परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, एंड वही आपको कॉज होता है कि इन केस इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल ऑन दोस पार्ट, कि ठीक है मैं तो बाहर का जंक फूड भी खा रहा हूँ। इवन अगर एक बड़ा एक मिथ होता है कि कि जब हम कहीं पर भी पार्टी करते हैं तो एक कॉमन, मतलब मेरे को एक फेस जो होने को मिलता है कि चलो यार ओके, आज ये सपोज आप चाहे पिज़्ज़ा खा रहे हैं, चाहे कुछ भी चीज़, अच्छा यार ये खा लेते हैं, चलो ठीक है कल थोड़ा एक्स्ट्रा साइकिल चला लेना। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ मैं देखता हूँ लोगों में कि जब भी कोई चीज़ जंक फूड खाएंगे, कुछ चीज़ खाएंगे, तो दिमाग में ये रहता है कि चल ठीक है थोड़ा सा और एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लेना, सब मैनेज हो जाए। बट ऐसा कभी नहीं होता है। आप समझिए, आप मैं इतना छोटा सा एक वैसे ही आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप एक पिज़्ज़ा खा रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि पूरे 1 वीक का आपका पूरा वर्कआउट ऑलमोस्ट आपने जीरो कर दिया है। सो डिपेंड करता है कि आप फूड खाओ, आपको ज़्यादा फूड खाना है आप ज़्यादा खाओ, आप फ्रूट्स कर सकते हो, आपको दाल बनानी, मतलब आप हर थिंग्स करो, बट उसको किस तरह का प्रिपरेशन हो रहा है वो एक इम्पोर्टेंट होता है। आप कितना ऑयल में प्रिपेयर कर रहे हो। आप जरूरी नहीं कि अगर कल को कोई कहता है कि हाँ नॉनवेज खाना है तो नॉनवेज से मेरे को नहीं प्रॉब्लम हो सकता है, नॉनवेज बहुत अच्छा है, वे ऑफ आपका सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अगर डेफिनेट बात है कि इफ यू आर ए नॉन वेजिटेरियन, सो नॉनवेज भी जो है आपका वे ऑफ सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अदरवाइज वेजिटेबल में देखें, वेजिटेबल में और ऑप्शन है आपके पास में। वेजिटेबल में इवन आपको ये रहता है कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो नॉन वेजिटेरियन है या कुछ खा रहे हैं तो उनके पास में बहुत इजी होता है। मैं ये कहता हूँ कि वेजिटेरियन में बहुत ज़्यादा इजी है आपको प्रोटीन इनटेक करना। इवन आप एक बाउल दाल ही ले लेते हैं, आपके पास इतना सोर्स होता है प्रोटीन का, सो आप उसको चिकन वगैरह से कंपेयर नहीं कर सकते हो। सो इसलिए जंक फूड, मतलब मैं हमेशा ही मानता हूँ जंक फूड और ये जो शुगर वगैरह है, ये शुगर तो मतलब आप ये मानिए कि आप स्पोर्ट्स नहीं भी कर रहे हैं ना, तब भी इसको एक अदर वर्ड में आप सर्च करेंगे तो ये एक पॉइजन की तरफ आपको कंसिडर करना चाहिए। शुगर को हमेशा मानो कि ये आपके लिए एक पॉइजन है। ये अगर आप उतना वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो ये आपको पॉइजन की तरह काम करेगा। अगर आप, डेफिनेट बात है कि आप अगर वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे हम कहते थे कि
हमारा इंडियंस में क्या रहा था कि एक शुरू से एक कहीं ना कहीं हम एक कहीं खेती बाड़ी से इन सब चीज़ों से हम बिलोंग करते थे। हमारे अगर जो फादर इन लॉ होंगे, कहीं ना कहीं आप देखो किसी हर एक के साथ ऐसे रहते थे। एंड उन सब लोगों का इतना वर्कआउट होता था, इतना जो है वो डेली का वो इतना कैलोरीज बर्न करते थे। सो उसके बेस पे अगर वो इवन डेफिनेट बात है कि वो डेली अगर वो इतना शुगर इतना चाहे वो कुछ भी खा लेंगे उनको सब डाइजेस्ट होता था, क्योंकि वो डेली की जो सबकी लाइफ थी वो लाइफ उसी अकॉर्डिंग थी। हमें उतना सोच, बट आज की डेट में वी कैन आल्सो अंडरस्टैंड कि अगर एक पर्सन कोई भी चाहे प्राइवेट जॉब वाला है या गवर्नमेंट जॉब वाला है, आप ये समझिए ना उसका टाइमिंग क्या है। मॉर्निंग में आप उठ रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप बस ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए, उसके बाद आपने डेफिनेट बात है कि जो अपना फूड है फिर आप फूड खाया, उसके बाद आप ऑफिस निकल गए। आप उसके यहाँ से ऑफिस से भी क्या हो रहा है, मैक्सिमम में हो सकता है कि आपके घर से आप अपना ये कार या बाइक या किसी बस या मेट्रो जा रहे हैं, एंड देन वहाँ पे गए। मैक्सिमम केसेस में आपका ज़्यादातर कैलोरी बर्नआउट होता ही नहीं है ऑफिस जाने तक, ठीक है। अनलेस अनटिल कि आप जो है हो सकता है कि आपका 30 मिनट या 40 मिनट का वॉक है, वो एक अलग चीज़ है। बट मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है कि पूरा आपका कोई भी उस समय जो है कैलोरी वर्कआउट नहीं होता। आप सीधे ऑफिस जाते हैं, आप डे में मैक्सिमम जिनका ऑफिस का जॉब है वो कंटिन्यूस उस चेयर पे बैठेंगे, वो लैपटॉप या डेस्कटॉप उस पर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। डे खत्म हुआ, अगेन वो जो है शाम को अपने घर आ रहे हैं 7-8 बजे, उसके बाद वो वहीं टीवी लग गया, वहीं पे खाना खाया है, वहीं पे थोड़ी देर बैठ के वहीं सो गए। सो फिजिकल वर्कआउट में आई थिंक आप देखोगे धीरे धीरे वो जीरो होता जा रहा है। कोई भी जो है एक मैं कहता हूँ कि एक रूटीन बनाना कि हाँ डेली वो अगर 30 मिनट या 40 मिनट या 1 आवर के लिए डेली वॉक में जा रहे हैं और एक इवनिंग में भी कर रहे हैं, सो वो एक बहुत ही लिमिटेड लोगों में आपको मिलेगा। एंड जो मिलेगा वो कितना कंटिन्यूस है, कितना रेगुलर है, वो एक मोर इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए क्योंकि सिंस हम फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, हम इतना वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, हम डेली इतना कैलोरी बर्न नहीं कर रहे हैं, और हम इनटेक में हमने सेम वही पैटर्न बना रखा है। हमें डेली पता है कि हाँ अगर मेरे को जो है अगर 5 टाइम कोई चाय पी रहा है या टी कॉफ़ी कर रहा है, उसमें कितना शुगर इनटेक कर रहा है, साथ में कोई भी थिंग्स आ रखा है, तो हम वो फूड की हमारी हैबिट वही बनी पड़ी है। लेकिन वर्कआउट वाला हमने कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोगों ने वो जीरो कर रखा है, और उसी की वजह से हम आज की डेट में सबसे एक कॉमन आपको मिलेगा। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है ना कि जब आपको प्रॉब्लम होता है देन ओनली आप उसको जो है उसकी मेडिकली नॉलेज लेते हो। क्योंकि मेरे को भी क्या था कि आई थिंक 2015 में हाई बीपी का प्रॉब्लम हो गया था, एंड धीरे धीरे जब आपको पता चलता है कि अच्छा हाई बीपी क्या है, अच्छा ये तो कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है, अच्छा ये एलडीएल वाला जो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल वो इंक्रीज होता है, तब जाके आपको हो सकता है बीपी का है, जो भी इसका मिथ बना हुआ है। बट धीरे धीरे ये पता चल गया कि हाँ ये आपके जो है फूड हैबिट की वजह से कहीं ना कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल जो है इंक्रीज होता है। सो एक जब ये साइकिलिंग के साथ में इवेंट ऐड होता है तो सबसे एक मैंने जो फोकस किया एक फूड हैबिट को एक बहुत इम्प्रूव किया। अब ये रहता है कि फूड में आई थिंक मेरा ऑलमोस्ट शुगर का पार्ट जो है वो मतलब 95% में जो है अवॉइड करता हूँ कि नहीं होता है किसी भी टाइप में। ओके एंड जितना हमें शुगर हमें बॉडी को चाहिए होता है वो बाय डिफॉल्ट हमें जो है फ्रूट्स वगैरह से मिल जाता है। सो उसके लिए किसी को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम शुगर बंद कर देंगे या ये सॉल्ट बंद कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारी बॉडी की वो थिंग्स जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कैसे कंप्लीट होगा, वो उसमें किसी को कोई वरीड होने की जरूरत नहीं। हम जितना ग्रीनरीज खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं या जितने हम फ्रूट्स खाते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें जितना जो है बॉडी को नीड होती है वो सारी उससे कवर कर लेती है। आप मिनिमम सॉल्ट यूज़ करिए, सॉल्ट जो है मिनिमम होना चाहिए आपका जितना भी आपको जो स्वाद के लिए खाना है। सो फूड का हर एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डेफिनेट बात है। एंड आई कैन सी कि जिसने कहते हैं ना कि वो आपकी जो टंग पे कंट्रोल कर लिया है सो उसके लिए बहुत लाइफ इजी है। टंग पे कंट्रोल मतलब दोनों वे में, हम कहते हैं बोलने में भी और खाने में भी, तो दोनों पे कंट्रोल हो तो मतलब लाइफ जो है उससे बेटर नहीं है। सो टंग पे जिसने कंट्रोल कर लिया वो एक मतलब उसके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट वही है। बाद में स्पोर्ट्स में जिस भी इवेंट में है उसके लिए वो अचीवमेंट आना उसके लिए मतलब थोड़ा इजी पार्ट हो जाता है, उस पर थोड़ा जो है अचीव करना। बट अगेन सो आपका रेगुलर प्रैक्टिस मतलब आपका ऐसा नहीं है कि अगर आप एक इवेंट में अगर हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट पेरिस की, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि हाँ मैं किसी वीकेंड पे बस सैटरडे संडे राइड कर लिया, 1-2 दिन चले गया, उससे करके मैं कहीं पे प्लान कर रहा हूँ तो डेफिनेट बात है कि मेरे फेलियर होने के चांसेस बहुत होंगे,
मतलब यू नेवर नो कि डेफिनेट बात है कि हमारे पास में सर्टेन एग्जांपल्स भी होते हैं कि कई लोग जो है इमीडिएट एक लॉन्ग राइड से ही स्टार्ट करते हैं अपना, मतलब उनका मे बी फिजिकल बॉडी इतना अच्छा है, वो सब चीज़ कवर अप कर लेती है। बट मैक्सिमम केस में अगर मैं कहूँगा कि आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं है, आपने प्रॉपर अपना जो है रेगुलर आप राइड नहीं करते हो, अगर मतलब एटलीस्ट मेरे को ये पता है कि 7 डेज में मेरी 6 डेज जो है मिनिमम राइड होती हैं, ठीक है। ये 1 डे हम जो है मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि उसको रिकवरी डे रखने के लिए, या उस दिन मतलब 1 डेज में बिल्कुल उस दिन का रहेगा जिस दिन रिकवरी हो सकता है बहुत ही इजी साइकिलिंग करके हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, सो दैट कि हमारी सारी बॉडी की स्टिफनेस वगैरह निकल जाए। सो बट आपका रेगुलर होना ही आपके लिए जो है एक कहीं ना कहीं साइन है कि आपके जो है सक्सेसफुल होने के लिए उस वाले इवेंट में। सो डेफिनेट बात है कि आपका रेगुलर ट्रेनिंग और आपका साथ में आपका जो है आपके मसल्स पे, आपके जो आप स्ट्रेंथ पे आप वर्कआउट कर रहे हो, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे आप जो वर्कआउट कर रहे हो, बिकॉज आप देखेंगे कि धीरे धीरे मैक्सिमम जो मैंने बताया था ना कि जो हमारा डेली का रूटीन हो गया मैक्सिमम पीपल का, हम कहीं ना कहीं एक वर्कआउट तो छोड़ ही रहे हैं, हमारी बॉडी की स्ट्रेचिंग जीरो होती जा रही है। आप मतलब मेरे को ये पता है कि मैक्सिमम में से जब मैं साइकिलिंग करता था तो मैं खड़ा होकर मतलब एक कहते हैं ना कि आपको एक नीज पे अपनी नोज टच करना है, वही आपके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप सीधे खड़े होकर अगर जमीन पे आपको जो है पाम लगानी है बिना नीज को बैंड किए, सो वो कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रेचिंग, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। ओके, सो आप स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, आपका फूड हैबिट, आपका डेली ट्रेनिंग जो है वो भी जो है आपका सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ में, क्योंकि आप कभी भी, मैं कहता हूँ कि आप अगर कोई बिग इवेंट के लिए आप प्लान करते हैं तो मैं एक हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कहीं ना कहीं किसी भी प्रोफेशनल कोच से एक सिस्टमेटिक प्लानिंग, सिस्टमेटिक ट्रेनिंग जरूर लें। कोई भी इवेंट है, चाहे वो बैडमिंटन है, चाहे वो इवन लॉन्ग टेनिस है, चाहे वो रनिंग है, बिकॉज हमें कई चीज़ों का टेक्निकलिटी पता नहीं होता। हम ये सोचते हैं कि बचपन चलो ठीक है रनिंग तो ऐसे ही कर लेते हैं, भागना ही तो होता है, कुछ नहीं। बट जब आप उसकी टेक्निकलिटी समझते हैं, आप इवन आज की डेट में तो आपके पास सबसे ईजी है कि हमारे पास में एक इंटरनेट जैसी फैसिलिटी मिल गई है, सबके पास मोबाइल हैं, तो डेफिनेट बात है कि अगर आप एक यूट्यूब पे जाएंगे देन आप उसमें एक छोटी चीज़ लिखेंगे कि रनिंग के लिए आपके क्या क्या बेसिक हैं, देन यू विल फाइंड कि अच्छा इसमें तो ऐसा होता है, अच्छा पाँव को ऐसे पहले रखना पड़ता है, रनिंग के लिए पहले ऐसे करना होता है, जब आप फास्ट करते हो स्प्रिंट में ऐसे करना, देन यू विल फाइंड कि अच्छा यार यही होता है। सेम साइकिलिंग में भी क्या होता है, हमारे माइंड में होता है अच्छा यार कोई नहीं, बैठ के पैडल ही तो मारना है, साइकिलिंग करना है, ये वाला पार्ट नहीं है। बट जब आप क्या होता है कि सिस्टमेटिक ट्रेनिंग लेते हैं, देन आपको पता चलता है कि अच्छा आपको अपने हार्ट रेट के साथ में ट्रेनिंग करनी होती है। डेफिनेट बात है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम कोई फास्ट एफर्ट लगा रहे हैं, कहीं पर आपकी कंटिन्यूस क्लाइंब आ गया सोचो, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो है अगर आपने सिस्टमेटिक एक प्लान ट्रेनिंग नहीं ले रखी तो आपको बहुत डिफिकल्टीज पक्का आएंगी। अगर आपने एक प्रॉपर जो है, या तो चाहे आपने खुद से भी ट्रेनिंग ले रखी है, अच्छी बात है, बट आपने हर एक वेदर के साथ में, हर एक कंडीशन में आपने जो है ट्रेनिंग नहीं ली। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि मैंने रेन के साथ भी करी है कि मतलब अगर आपको बारिश भी आ रही है तो उसमें मैं कंटिन्यूस कैसे राइड करूँ, उसमें मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कंटिन्यूस मेरे को ये पता है कि 45 डिग्री 48 डिग्री में भी मैंने राइड करी है, तो मेरे को पता है कि उस समय मेरे को डिहाइड्रेशन में कितना प्रॉब्लम होता है। ओके, इवन मैं आज का एग्जांपल देता हूँ। आज मेरे को पता है कि मैं 116 किलोमीटर की मेरी मॉर्निंग में राइड थी, सो एंड उसमें आज क्योंकि वेदर इतना ख़राब हो रखा है एंड सबसे ज़्यादा आपका जो ह्यूमिडिटी हो रखी है करंट वेदर में, ओके, एंड जो हीट के साथ में जो आपकी विंड चल रही हैं, सो आपको इतना जल्दी वो डिहाइड्रेट करता है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि मैं जो है परी चौक तक गया था आज, और वहाँ से आते आते महामाया पे फ्लाईओवर पे रुका, एंड आई फाउंड कि मैं टोटली पावर एनर्जी वाइज ड्रेन हो गया था वहाँ पर, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे को प्रॉब्लम हो रखा था। सो इसलिए आपको एक हर वेदर में आपको एक प्रॉपर एक पता रहना चाहिए कि हाँ मैं अगर डेफिनेट बात है कि इतनी एक हीट में मेरे को मतलब इतना अगर मैं 45 डिग्री या 48 डिग्री में चला रहा हूँ तो डेफिनेट बात है मैं कितनी देर सर्वाइव कर सकता हूँ, मेरे को उस समय किस पैटर्न में चलानी है, मैं कितने इफर्ट के साथ कंटिन्यू चलाऊँ, मेरे को वाटर का, क्योंकि डेफिनेट बात है कि अगर मैं नॉर्मल वेदर में जा रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं 20 मिनट में भी मैं पानी पी लूँगा तो मेरे को कंफर्टेबल रहेगा। बट
जब मैं अगर 45-48 डिग्री में जा रहा हूँ तो हो सकता है मेरे को 10 मिनट में भी मैं हो सकता है वाटर का कंटिन्यूस इंटेक करना पड़ेगा मेरे को, डेफिनेटली बात है। सो आपको ऑल वेदर के अकॉर्डिंग आपको रेडी रहना चाहिए। और क्योंकि आप इतने लॉन्ग इवेंट के जा रहे हैं, आपको पता नहीं, जैसे अगर मैं पेरिस की बात करूं और वो भी 2019 वाले इवेंट की बात करूं, सो इस बार वो इवेंट इतना डिफिकल्ट क्यों हो गया था, क्योंकि साइकिलिंग में एक सबसे ज़्यादा आपके लिए जो डिफिकल्ट वाला पार्ट होता है वो होता है आपका विंड। अगर आपको हेडविंड मिल गया, आप समझ सकते हैं कि आप अपना एफर्ट लगा रहे हैं तो राइड करने के लिए, एंड सडनली आपको सामने से पूरी तेज आपको जो है 15 to 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको विंड भी आ रहा है, मिल रहा है। ओके, सो आपके सोचिए कि आपके एफर्ट कितने एक्स्ट्रा हो गए अब राइड करने के लिए, आपकी डिफिकल्टी कितनी इंक्रीज हो गई है आपकी टोटल राइड का प्लानिंग, आपका पूरी जो कैलकुलेशन है आपने जितने कर रखा है वो कहीं ना कहीं सारी धीरे धीरे फेल होने लग जाती है जब ऐसी कंडीशन आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये आपने प्लानिंग नहीं करके। बट डेफिनेट बात है कि आजकल जो फोरकास्ट डिपार्टमेंट है वो इतना काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। सो आज की डेट में जब भी कोई इस टाइप के इवेंट होते हैं तो पहले ही जो जितने अच्छे राइडर होते हैं वो पहले ही वेदर देख लेते हैं कि अगर मेरे को डेफिनेट बात है कि दिल्ली से पंजाब की साइड में राइड करना है तो वो पहले देख लेते हैं कि अच्छा कहाँ से कितने बजे से कितने बजे तक मेरे को विंड मिलेगी, ये क्रॉस विंड है, ये हेड विंड है, या मेरे को टेल विंड मिलेगी। अगर डेफिनेट बात है कि मैं राइड कर रहा हूँ दिल्ली टू पंजाब और मेरे को पता है विंड भी दिल्ली टू पंजाब चलती है, तो मेरे को पता है कि मेरे लिए राइड और ईजी हो जाएगी क्योंकि मेरे को पीछे से विंड का भी सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है कि मेरे लिए एफर्ट भी ईजी हो जाएंगे। बट सेम इसका अगर रिवर्स हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, सो वो आपके लिए डेफिनेट बात है कि एक वर्स्ट कंडीशन हो जाती है। सो इस बार ये 2019 वाला जो इवेंट था वो सबके लिए इसलिए वर्स्ट हो गया था क्योंकि पेरिस से डे जो स्टार्ट था हमारा था 18 अगस्त को। सो 18 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक जो है वो आपके लिए ब्रेस्ट से पेरिस की तरफ में हवा आ रही थी, यानी आपको पूरी जो है मैक्सिमम टाइम में आपको हेडविंड मिलनी थी। और आपके लिए वर्स्ट इसलिए हो गया था कि जब आप वहां से 20 के बाद में 21 से वो उल्टा सेम रिवर्स हो गई एयर, तो दैट मीन आपको ऑलमोस्ट पूरे रूट पर आपको 1200 किलोमीटर में गए हैं तो ऑलमोस्ट आपको 1100 के करीब में आपको विंड आपको फ्रंट में मिलनी ही है, क्रॉस में या फ्रंट में आपको विंड मिलनी ही है। सो वो एक सबके लिए कहीं ना कहीं एक टेंशन का पार्ट बन गया था जितने फॉरनर्स आए थे, जितने वहाँ पर, बिकॉज एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये एक इवेंट जो है वो 4 इयर्स में होता है। एंड यूरोप में क्योंकि रेसिंग के एक अलग इवेंट होता है, जो हमने एक बात करी थी कि टूर दे फ्रांस है या हर एक कंट्री का हर एक सिटी के डिफरेंट वो एक उनके इवेंट होते हैं रेसिंग के। सो वो एक अलग पैटर्न होता है। एंड ये जो एक कहते हैं ना कि बिकॉज सबसे ओल्डेस्ट वाले में से इवेंट में ये पार्ट आता है जो पेरिस है। ओके, सो आई हर्ड अराउंड आई थिंक 1928 और समथिंग के करीब से ये शायद इवेंट चल रहा है। ओके, जो ये 1200 किलोमीटर का राइड का है। और इसलिए वहाँ पर ये इतना जो है लोगों में जो लॉन्ग राइड करते हैं, डेफिनेट बात है कि उनके लिए बिल्कुल जैसे जिस तरह से हम ये कहते हैं कि इंडिया में एक कुंभ का मेला होता है कि 4 साल में आता है, डेफिनेट बात है कि वहाँ पर जाके श्रद्धालु जाते हैं और करते हैं। सेम जो राइडर्स डेफिनेट बात है कि जो एंड्योरेंस राइड करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस वाले करते हैं विद इन दिस फॉर्मेट ओनली, सो उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक कुंभ का मेला होता है। सो एंड अराउंड 70 कंट्रीज से जो है पार्टिसिपेंट्स आते हैं। सो इस बार भी अराउंड 6600 जो है पार्टिसिपेंट्स वहाँ पर आए थे। सो वेदर की वजह से इस बार जो मैं कहता हूँ कि एक डेफिनेट बात है कि सबकी एक माथे पे एक लाइन आ गई थी। मैं वी कैन सी बिकॉज हम जब वहाँ पर पेरिस में पहुँच गए थे तो डेफिनेट बात है कि 2-3 दिन पहले हम नॉर्मली वहाँ का वेदर देखना, वहाँ पर थोड़ी बहुत राइड करके अपना वेदर को समझना, बिकॉज ऐसे नहीं कि हम पहले कभी राइड करने गए थे वहाँ पर। सो और इस बार इंडिया से इस बार इतना पार्टिसिपेशन था, सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ था क्योंकि जो लास्ट हुआ था इवेंट पेरिस जो 2015 में, सो उसमें अराउंड 55 to 58 के करीब जो है मैं कैसे इंडिया से पार्टिसिपेंट गए थे। एंड इस बार 300 प्लस हो गए थे पार्टिसिपेंट जो यहाँ से पार्टिसिपेट करने गए थे। एंड दूसरा क्या होता है कि इसमें आपके पास 3 टाइम स्लॉट होते हैं। You have 80 hours time slot, you have 84 hours, and then you have 90 hours time slot.
सो आपने जो टाइम स्लॉट ले लिया है, आप उसके अंदर ही आपको फिनिश करना है, आप उससे ओवर नहीं जा सकते। अगर आप 1 मिनट भी आपने ओवर करा है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। सो एंड आपको हर एक डिस्टेंस पे, फॉर एग्जांपल 90 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के करीब पे उनका एक कंट्रोल पॉइंट बना होता है, जहाँ पर आपको एक कार्ड मिलता है। डेफिनेट बात है कि आपको वहाँ पर टाइम पंचिंग करना होता है। आपके पास एक RFID के साथ में आपको एक जो है टैग कार्ड मिलता है आपका, जो आपकी बाइक पे होता है। तो जैसे ही आप उस पर आप राइड करेंगे तो डेफिनेट बात है कि वहाँ पर आपका टाइम पंच हो जाता है। ओके, सो उसमें कहीं ना कहीं आपको हर एक लोकेशन का, हर एक उसका थिंग्स का आपको ध्यान रखना है कि हाँ ठीक है, मेरे को टाइमिंग भी देखना है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैंने अगर 84 आवर्स वाली कैटेगरी में ले लिया है तो ये नहीं कि हाँ 90 आवर्स मैक्सिमम है तो मैंने 84 की जगह 85 में कर ली तो हो सकता है मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा। वो ऐसा नहीं होता है। अगर मैं डेफिनेट बात है कि अगर मैंने या तो कैटेगरी रॉन्ग पिक करी है, अगर मेरी बॉडी की कैपेबिलिटी, मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ जो है मेरे को 84 में नहीं कर रही, तो मैं हो सकता है मैं बेटर है कि मैं 90 आवर्स की कैटेगरी में जाऊँगा अगर वहाँ पर। सो PPP में ये एक टाइम पिक करना एक इम्पोर्टेंट रोल था। सो इसलिए मैंने ये देखा था, एक जस्ट हमने प्लान किया था, क्योंकि जो 84 आवर्स वाली कैटेगरी थी उनका टाइम स्टार्ट जो होना था वो मॉर्निंग में होना था 5 o'clock। सो एंड जो 90 आवर्स वाले थे, जो मैक्सिमम जो राइडर जाते हैं वो 90 आवर्स वाली कैटेगरी में जाते हैं, बिकॉज उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है उसमें। तो उसमें इवेंट जो स्टार्ट हो रहा था उनका वो हो रहा था इवनिंग से। सो इवनिंग में हमें बस ये एक लग रहा था डिसएडवांटेज ये होगा कि जैसे ही अगर हम इवनिंग में 6 o'clock में राइड स्टार्ट कर रहे हैं तो आफ्टर राइडिंग 4 किलोमीटर और 4 आवर और 3 आवर्स के बाद में एकदम नाइट होएगा। डेफिनेट बात है कि आपको जो है एक आपके लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, स्लीपिंग टाइम आपका जो है वो कहीं ना कहीं आपको हिट करने लग जाएगा। सो मॉर्निंग में हमें कहीं ना कहीं ये एक एडवांटेज था कि 5 o'clock से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेट बात है कि हम फुल मतलब मैक्सिमम टाइम जो है हम अपना रोड पे निकाल के एंड देन नाइट का होएगा उसको कवर कर सकते हैं। सो हम अपने जो हम कहते हैं, हाँ श्योर, अनफॉर्चुनेटली अभी 7 हो चुका है। I mean, we would love to stay and listen to, you know, yes, the ins and out and everything about cycling. Sure. Lekin in respect to time, क्योंकि our audience do make a free schedule every day from 6 to 7. Or out of respect for them, we tried not to take too much time from their own personal schedule. Of course, they are working families and whatnot. Yes, sure. So definitely, we'll try to get Sanjeev sir back for another episode, because I don't think the topic ends here. When we talk about cycling, when we talk about sports, I don't think it's a conversation of 1 hour. Okay, you need to eat good, you need to do this thing. Running में cadence होता है, you know. Yes, it's not as simple. There's a technique, there's the coaching, there's endurance, there's I don't know, even I can't name everything right now. Yes. Can I just say something, Saman? Yes, sir. बता दो मैं. What Sanjeev described is actually every single person's journey in their own lives. Very true. In our lives, we have a timer. We cannot go beyond that time. For some of us it is 80, some of us it is 84, some of us it's 90, and we cannot go beyond that. And within that, we have to learn to take a power nap. We have to learn to take how we want to manage it. We have to learn how to eat well. We have to learn how to manage ourselves well. We have to learn how to get up when we fall down. We have to learn how to go up the hill. True. Through inclining. So that's all I need to say, because what Sanjeev said for the last 1 hour is actually the story of any single person's life on this earth. It is time bound. It is our choice how we want to live it. And I have one more point. Relevant to the current time also, as he said, if you are climbing up the slope, right? So that's the most difficult part, and that is the part where you test your endurance and your persistence a lot. And I think that is pretty much analogous to the current times. We are almost like everyone is cycling up the slope and against the wind. True. That's a definite true. I have one more point. I think I'll just wrap up the thing.
सेंसर जैसे अभी आपने समराइज किया, मेरे को एक चीज़ सर, मैं बड़ी एक छोटी सी चीज़ हमेशा किसी को बोलता हूँ, बिकॉज कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाता कुछ थिंग्स है, बिकॉज एक सबसे सर कॉमन एक जो हमें क्वेश्चन मिलता है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को, वो कहते हैं अच्छा यार तूने ये मीठा छोड़ दिया, ये फूड छोड़ दिए, तो क्या बेनिफिट मिला, सब वही लाइफ है, वही जी रहे हैं, हमारी भी लाइफ वही है। तो सर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ बस, ओनली थिंग, कि हो सकता है कि दोनों पर्सन, अगर मैं डेफिनेटली बता डेली अगर 5 बजे उठ के वर्कआउट के लिए जा रहा हूँ, 4 बजे का मेरा अलार्म रहता है, 5 बजे मैं राइड स्टार्ट करता हूँ, मैं रोज फूड में इतने इतने थिंग्स रखता हूँ, एंड सेकंड पर्सन जो कुछ भी चीज़ जो है वो अपना जो है अवॉइड कर रहा है एंड सब चीज़ खा रहा है, वो कहता है यार मैं भी, हो सकता है कि 80 साल मैं भी जीऊँगा, तू भी 80 साल जिएगा, बता क्या फ़ायदा रहा। सो मेरे को ओनली थिंग एक ये लगता है सर, मैं जस्ट ये बोलता हूँ, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैं 80 साल जी रहा हूँ, इम्पोर्टेंट ये है कि जो लास्ट के 5 ईयर हैं वो मैं कहीं बेड पे तो नहीं निकाल रहा हूँ, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस समय मेरे को हो सकता है कोई चम्मच से वो लिक्विड वाला फूड दे रहा है मेरे को, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी सपोर्ट के साथ में वॉक कर रहा हूँ। तो ओनली थिंग मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं आप इस समय एक्टिव रहते तो आपका जो लास्ट वाले जो 5 ईयर है ना, आप 5 ईयर को आप थोड़ा जो है एक जिंदगी जीना चाह रहे हो, आप वो लास्ट में आप 5 ईयर को कोई किसी कॉम्प्रोमाइज करके नहीं जीना चाहते हो। तो मेरे को बस वही लगता है, मैं और थिंग्स किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ। आपने जो बताया, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज people say life starts at 40, some people say life starts at 20, I say Exactly. life starts after 60. So I if haven't you started yet. so if you are not careful, then the Yes. life that will start after 60, because after 60 क्या होता है कि आप लोग रिटायर करते हैं, काम नहीं जा रहे, so you have a lot Yeah. of time on your hands. Exactly. And the Exactly. problem, what Sanjeev said is, if you're not fit at that point of time, then the rest of the time that you have, you'll spend going to the doctor, Exactly. taking a lot of tests, सुबह शाम दोपहर को पिल खाते रहो, ये Yes. करो वो करो. So that's a choice you have to make. True. True. So Samant, Right. If you ask me, live starts at 6 p.m. on Pro Bono's Facebook page, but that's beside the point. it does, it does, I agree. Right. So, guys, I'll just read out a few audience comments. Let's see. There are a few audience comments. Firstly, Nitesh Sharma says, "Thank you, Pro Bono, for introducing Sanjeev, sir. Thank you for watching, Nitesh." And also, Nitesh Sharma's comment, "Pro Bono, ek din Tiger Shroff ko bhi introduce karwano, please." We'll try to. We have a few we have a few actors in line. I don't know, ranging from Amitabh Bachchan and Leonardo DiCaprio. We'll try to get them on soon. Let's see. Deepinder says, "Great to see your session. You are inspiring so many people." Let's see. Amit says, "Superb champ, keep inspiring." Let's see. Avinash says, "Sanjeev bhai, thanks for explaining in simple language." And Thank you so much. and there's a whole plethora of praises and positive vibes towards you, Sanjeev sir. My Now, pleasure. of course, we have to adhere to the timeline that is 6 to 7. But definitely, we do hope to. We'll figure it out when we can have a 2-pointer to talk more about cycling. Sure. But आज के लिए, first of all the audience members, thank you for watching. And then, of course, Aditya and Mr. Sen and Vinayak for running the stream. Thank you for coming. And most importantly, Sanjeev sir, thank you so much for coming. It was a pleasure it's my having you on our pleasure. podcast. Sir, it's my pleasure to be here and sharing my experience with you people. Thank you so much. Thank you so much. So, Thank you, guys, sir. stay home, stay safe, wash your hands, like and follow Pro Bono's Facebook page, and turn on post notifications to get notified when we do go live. And you can subscribe to our YouTube channel to catch our live streams and recorded videos on entrepreneurship. And we'll see you tomorrow at 6 p.m. same time with another guest. Take care now. Bye bye. See you. Thank you. Thank you, everyone. Bye bye.